distance between the center of positive negative charge का center के बीच में जो distance है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं mu is equal to q multiplied by r q is charge r is distance of separation unit of dipole moment is j by d जो है यूनिट ऐसा यूनिट है dipole moment का 1 day by 3.33564 10 is to minus 30 coulometer c coulometer dipole moment being a vector quantity is represented by a small arrow with the tail in on the positive center and the head pointing towards the negative center. तो dipole moment में वेक्टर क्वांटिटी जो रहता है dipole moment वेक्टर क्वांटिटी रहता है जो रिप्रेजेंट होता है छोटी सा एरो की वजह से जिसमें टेल जो है वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ रहता है और हेड जो है एरो का वो नेगेटिव सेंटर की तरफ जो रहता है जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में देख सकते हैं वही दिखाता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दिखाता है तो जहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है वहाँ पे एरो का हेड है और जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव वहाँ पे एरो का टेल है यहाँ पे डायपोल मोमेंट mu is 1.91 d 1.91 d by the crossed arrow above Lewis structure indicates direction of the shift of electron density towards the more electronegative atom. Crossed arrow जो रहता है लेविस स्ट्रक्चर के ऊपर से इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायरेक्शन का शिफ्ट जो है वो एकदम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है dipole moment of polyatomic molecule का dipole moment each polar bond is a polyatomic molecule at its own dipole हर polyatomic molecule में जो हर polar bond जो रहता है उसका खुद का dipole होता है the resultant dipole of the molecule is decided by shape of the molecule that is the spatial arrangement of bonds तो यहाँ पर molecule का dipole डिसाइड होता है किसकी वजह से बॉन्ड्स का जो स्पेटियल अरेंजमेंट है उसकी वजह से मॉलिक्यूल का शेप पता चलता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल डायपोल एंड दोस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंडिविजुअल डायपोल का जो कंट्रीब्यूशन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इफ एनी द डायपोल moment of polyatomic molecules is the vector sum of the dipole moment of various bond and lone pair. तो यहाँ पे polyatomic molecule का जो dipole moment जो है टोटल वेक्टर है इसका टोटल वेक्टर है अलग अलग बॉन्ड और लोन पेयर का dipole moment का टोटल वेक्टर है कंसीडर बेरिलियम डाइफ्लोराइड एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड beryllium difluoride is a linear molecule and dipole are in opposite direction and are of equal strength. So net dipole moment beryllium difluoride is equal to 0. तो beryllium difluoride जो है linear molecule रहता है यहाँ पे dipole opposite direction में रहता है तो उसका जो total dipole moment रहता है beryllium difluoride का वो 0 से equal होता है तो bond dipole और net dipole in beryllium difluoride बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो रहता है वो एंगुलर होता है
ट्राइफ्लोराइड जो बॉन्ड है 120 डिग्री molecule symmetrical है. The three BF bonds are oriented at 120 degree with each other, and sum of any two is equal and opposite to the third direction if sum of BF molecule is equal to 0. तो तीन बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड ओरिएंटेड रहता है 120 डिग्री में जो बॉन्ड एंगल है, और टोटल जो है दोनों का इक्वल ऑपोजिट में है थर्ड से, और टोटल जो रहता है बोरॉन फ्लोरीन का डायपोल्स dipole bond dipole net dipole boron trifluoride is equal to 0. Boron net dipole moment is 0. In case of angular molecule, both lone pair and electronegativity difference contribute to dipole moment. तो यहाँ पे दोनों लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो डायपोल मोमेंट में फर्क लेके आता है जो एंगुलर मॉलिक्यूल का होता है. Lone pair and dipole moment. In some molecules, the central atom has unshared or lone pair of electron. Lone pair और dipole moment कुछ molecules central atom में unshared या फिर lone pair of electron होता है. This lone pair also contribute to overall dipole moment of the molecule. तो ये lone pair dipole moment को contribute करता है. नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन, वाटर. अमोनिया जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर में है. Lone pair this reinforce the dipole due to NH and OH bonds. इसमें lone pair होता है. वापस possess lone pair this reinforce the dipole due to NH and OH bond. तो NH और OH bond की वजह से जो डायपोल का असर पड़ता है लोन पेयर की वजह से. बोथ इस मॉलिक्यूल हाईली पोलर, दोनों मॉलिक्यूल जो है हाईली पोलर है. अमोनिया उसका डायपोल मोमेंट 1.48 दबा, वाटर का 1.85 दबा है. नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है और पार्शियल नेगेटिव है. इधर दो लोन पे इलेक्ट्रॉन और दो पार्शियल नेगेटिव. Nitrogen has only one lone pair, while oxygen has two lone pair, which reflect in the higher dipole moment of water. नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ एक लोन पेयर रहता है, ऑक्सीजन जो है उसका दो लोन पेयर रहता है, जिससे ये वाटर का हायर डायपोल मोमेंट पे रिफ्लेक्शन दिखता है. Consider ammonia and nitrogen trifluoride. Both have pyramidal shapes with a lone pair of electron or nitrogen atom. अमोनिया और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड दोनों भी जो है पिरामिडल शेप दिखाते हैं. इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम में, दोनों में भी है. Here, hydrogen is less electronegative, while fluorine is more electronegative than nitrogen. तो हाइड्रोजन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव काफ़ी कम है कंपेयर टू फ्लोरीन से. फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से. The resultant dipole moment of ammonia is 4.910 - 30 coulomb, while that of nitrogen trifluoride is 0.8010 - 30 coulomb. Ammonium का resultant dipole moment 4.9010 - 30 coulomb है, और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का resultant dipole momentum 0.8010
10 to minus 30 kilometers. This difference is because in case of ammonia, the orbital dipole due to lone pairs in the same direction is that of the resultant dipole moment of each bond is again added, whereas in nitrogen trifluoride the orbital is in direction of opposite to the resultant dipole moment of 3 NF bonds. तो यहाँ पर अमोनिया में जो है अमोनिया के केस में लोन पेयर की वजह से जो ऑर्बिटल डाइपोल सेम डायरेक्शन में होता है एनएच बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट जो है ऐड होता है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में, तो ऑर्बिटल मोमेंटम जो है डायरेक्शन में ऑपोजिट रहता है टोटल डाइपोल मोमेंटम 3 नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड्स का. The orbital dipole, because of lone pair decrease, the effect of resultant NF bond moment which result in its low dipole moment. तो यहाँ पे orbital dipole किसकी वजह से होता है, लोन पेयर जो है वो हमेशा NF का इफेक्ट को कम करता है, NF के बॉन्ड मोमेंटम के इफेक्ट को कम करता है, डाइपोल मोमेंट को भी कम कर देता है. Resultant dipole moment अमोनिया मॉलिक्यूल नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल्स. अमोनिया का डाइपोल मोमेंट 4.90 10 - 30 किलोमीटर है. नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0.80 10 - 30 किलोमीटर. रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंटम, तो डाइपोल मोमेंटम का रिजल्टेंट तो लोन पेयर जिस डायरेक्शन में है अमोनिया का, हाइड्रोजन भी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में क्या है, लोन पेयर जिस डायरेक्शन में है नाइट्रोजन का ऑपोजिट है फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट जो है वो फ्लोरीन की तरफ है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो एरो का हेड उस तरफ जाता है. तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में दोनों भी डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, कैंसिल कर देता है. Ammonia, the central atom carbon has no lone pair and the molecule is non-polar. तो मीथेन क्या होता है, सेंट्रल एटम कार्बन जिसका कोई लोन पेयर नहीं है और मॉलिक्यूल जो रहता है वो नॉन पोलर होता है. In CHCl3, the dipole are not equal and do not cancel, hence methyl trichloride is polar with non-zero dipole moment. तो यहाँ पर मिथाइल ट्राइक्लोराइड का डाइपोल इक्वल नहीं रहता है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है. अमोनियम मिथाइल ट्राइक्लोराइड पोलर रहता है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट से. सो यहाँ पर कार्बन का जो हाइड्रोजन का एरो कार्बन की तरफ जाता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, और यहाँ पे क्लोरीन की तरफ जाता है एरो, क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से. तो टोटल जो डाइपोल मोमेंट है 1.04 है, किसका, मिथाइल ट्राइक्लोराइड का. Dipole moment of some molecule are shown in table 5.8. तो कुछ मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट जो है वो 5.8 में दिखाई देता है. तो यहाँ पे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एग्जाम्पल डाइपोल मोमेंट म्यू ज्योमेट्री होता है.
molecule AB hydrogen fluorine 1.91 dipole moment geometry linear होता है हाइड्रोजन क्लोराइड 1.03 dipole moment और linear geometry होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और dipole momentum 0.79 होता है geometry linear होता है हाइड्रोजन dipole moment 0 होता है geometry linear होता है molecule AB2 water dipole moment 1.85 bent geometry होता है हाइड्रोजन सल्फाइड dipole moment 0.95 bent होता है geometry कार्बन डाइऑक्साइड इसका dipole moment 0 होता है linear geometry होता है molecule AB3 ammonia dipole moment 1.47 geometry trigonal pyramidal होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड 0.23 होता है क्या होता है dipole moment और trigonal pyramidal geometry है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड dipole moment 0 रहता है trigonal planar geometry रहता है AB4 मीथेन AB3 ammonia dipole moment 1.47 geometry trigonal pyramidal होता है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड dipole moment 0.23 और geometry trigonal bipyramidal होता है bromine trifluoride फिर dipole moment 0 होता है और geometry trigonal planar होता है और फिर AB4 मीथेन 0 dipole moment और geometry tetrahedral ammonium trichloride इसका फिर dipole moment 1.04 और geometry tetrahedral होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड dipole moment 0 और tetrahedral geometry होता है कोलन कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड तो आयनिक बॉन्ड का कोलन कैरेक्टर several ionic compound possess partial covalent character and show property similar to covalent compounds तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का कोवलेंट कैरेक्टर तो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड जो है पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर दिखाता है और जो प्रॉपर्टी जो है काफ़ी सिमिलर रहता है कोवलेंट कंपाउंड से फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड इज आयनिक बट इट इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन वाटर तो एग्जांपल लिथियम क्लोराइड जो आयनिक रहता है वो ज़्यादा सॉल्युबल रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से कंपेयर टू वाटर से लिथियम क्लोराइड आयनिक रहता है वो ज़्यादा सॉल्युबल रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से कंपेयर टू वाटर में To explain the partial covalent character in ionic bonds, Fajans put forth the following rules. तो लिथियम क्लोराइड जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर दिखाता है ठीक है तो इसीलिए लिथियम क्लोराइड अगर आयनिक होता है तो उसको वाटर में डिजोल्व होना चाहिए था तो वाटर में नहीं डिजोल्व होता है वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्यूट में डिजोल्व होता है तो लिथियम क्लोराइड जो है कोवलेंट कैरेक्टर दिखाता है तो ये ऐसा आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसा आता है फजान्स रूल्स ने बताया है So, the smaller size of cation and larger the size of anion renders greater covalent character to ionic bonds. तो यहाँ पे कटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है तो आयनिक बॉन्ड के लिए जो कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रहता है फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवलेंट देन सोडियम क्लोराइड क्लोराइड से क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर दिखाता है सिमिलरली लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवलेंट देन लिथियम क्लोराइड उसी तरीके से लिथियम आयोडाइड भी जो है आयोडीन जिसका साइज बड़ा है क्लोरीन से तो लिथियम आयोडाइड जो है उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड तो लिथियम आयोडाइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है लिथियम क्लोराइड से greater the change in cation more is covalent character of ionic bonds तो कटायन
का जो चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो कटायन में चार्जेस ज़्यादा होंगे तो आयनिक बॉन्ड का कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ एल्यूमिनियम, डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, sodium chloride, decrease in the following order of aluminum 3 plus Cl3 minus greater than magnesium 2 plus Cl2 minus greater than sodium chloride। तो यहाँ पर कटायन का चार्जेस ज़्यादा रहता है और हार्मोनिक बॉन्ड का कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम थाइक्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कंपेयर टू मैग्नीशियम डाइक्लोराइड है, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में एल्यूमिनियम जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका साइज सबसे ज़्यादा है। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है मैग्नीशियम क्लोराइड से। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड से, क्योंकि इनका कटायन का साइज बड़ा है। For shape with the outer electronic configuration of S2P6D10 type possess a greater polarizing power compared to the cation having the same size and the same charge but having outer electronic configuration of S2P6 type। तो cation जिसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2P6D10 होता है, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू कटायन से, जिसका साइज सेम रहता है, चार्जेस भी सेम रहता है। लेकिन S2P6 टाइप का आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है This is because d electron of S2P6D10 shell screen nuclear charge less effectively compared to S and P electron of S2P6 shell। तो यहाँ पे S2P6D10 शेल्स का जो डी इलेक्ट्रॉन की वजह से स्क्रीन न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी कम इफेक्टिव रहता है एस और पी इलेक्ट्रॉन्स का S2P6 शेल से। Hence the effective nuclear charge in a cation having S2P6D10 configuration is greater than that of one having S2P6 configurations। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है कटायन में S2P6D10 कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू S2P6 कॉन्फ़िगरेशन से। फॉर एग्जाम्पल कॉपर क्लोराइड इज मोर कोवलेंट देन सोडियम क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड का कैरेक्टर ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड से, क्योंकि कॉपर का साइज बड़ा है कंपेयर टू सोडियम से। और यहाँ पे S2P6D10 कॉन्फ़िगरेशन है प्रेजेंट है। वापस पढ़ते ये वापस पढ़ते हैं, ठीक है। A cation with the outer electronic configurations of S2P6D10 type possess greater polarizing power compared to cation having same size and same charge but having outer electronic configuration of S2P6 type। तो जो cation जिसका outer electronic configuration में S2P6D10 जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है ऐसे कटायन से जिसका साइज तो सेम रहता है, चार्जेस भी सेम रहते हैं, लेकिन उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, क्योंकि उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है S2P6 टाइप रहता है, उसका पोलराइजिंग पावर कम रहता है। This is because the electron of the S2P6D10 shell screen nuclear charge less effectively compared to SP electron of S2P6 shell। क्योंकि S2P6D10 शेल का जो
डी इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम इफेक्टिवली रहता है कंपेयर टू SO3 इलेक्ट्रॉन से S2p6 shell का. Hence, the effective nuclear charge in a cation having S2p6 latent configuration is greater than that of one having S2p6 configuration. तो इसीलिए कटायन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जिसकी वजह से उसके पास S2p6 latent configuration है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है कंपेयर टू S2p6 कॉन्फ़िगरेशन वाले कटायन से. फॉर एग्जाम्पल कॉपर क्लोराइड is more covalent than sodium chloride. यहाँ पे कॉपर क्लोराइड जो है ज़्यादा कोवलेंट है सोडियम क्लोराइड से. ये और कॉपर प्लस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 होता है. कॉपर क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहता है सोडियम क्लोराइड से. Resonance. Many polyatomic molecules can be represented by more than one level structure. बहुत सारे polyatomic molecule जो रहते हैं उसमें एक से ज़्यादा level structure होते हैं. Consider for example 3 structure written for carbon dioxide. तो consider करो ऐसे structure को जिसमें carbon dioxide 2 minus होता है. Each structure differ from the other only in the position of electron without changing position of atoms. तो हर स्ट्रक्चर जो रहता है अलग अलग रहता है इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में बिना उसके एटम का पोजीशन चेंज किए. O C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस C डबल बॉन्ड O. None of this individual structure is adequate to explain the property. इनमें से एक भी स्ट्रक्चर जो है कोवलेंट कैरेक्टर प्रॉपर्टीज के बारे में बता ही नहीं सकता है. The actual structure of carbon trioxide is a combination of the level structure and is called as resonance hybrid. तो जो कार्बन ट्राइऑक्साइड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है कॉम्बिनेशन है लेवल स्ट्रक्चर का जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं. Resonance signifies that there is more than one possible way in which electron can be assigned in level structure. तो रेजोनेंस जो है बताता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन जो असाइन होते हैं लेवल स्पेस में लेवल स्ट्रक्चर में. The various structure are called canonical form. अलग अलग स्ट्रक्चर को canonical form बोला जाता है. Now consider the example of oxygen ozone. It is the resonance hybrid of the following structure. तो ओजोन का एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड. Resonance in ozone molecules. So O double bond O plus O minus gives O minus O double bond O O O resonance hybrid. Structure 1 and 2 are canonical form while structure 3 is a resonance hybrid. Structure 1 और structure 2 जो है canonical form है. Structure 3 जो है वो resonance hybrid है. Resonance energy. We have seen that many polyatomic ions and molecules can be represented by different canonical form and each form has a different energy. हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयन्स और मॉलिक्यूल जो है अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. हर फॉर्म में अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड करता है. Energy of the resonating form is different from the more stable structure resonance hybrid. तो यहाँ पे रेजोनेंस फॉर्म का एनर्जी काफ़ी अलग अलग रहता है बहुत सारे स्टेबल स्ट्रक्चर से.
रेजोनेंस हाइब्रिड से। The difference in energy of the stable contributing structure and the resonance form is usually defined as resonance energy. तो यहाँ पे जो स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर का जो एनर्जी में डिफरेंस है और रेजोनेटिंग फॉर्म जो है जो काफ़ी डिफाइन करता है रेजोनेंस एनर्जी को. To summarize, it can be stated that energy of the resonance hybrid structure is less than the energy of any single canonical forms. Hence, resonance stabilize certain polyatomic molecules or ion. तो यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का जो एनर्जी जो रहता है काफ़ी कम रहता है सिंगल कैनोनिकल फॉर्म का एनर्जी से. रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है कुछ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस को. The average of all resonating structure contribute to overall bonding character feature of the molecule. सभी resonating structure का average जो रहता है contribute करता है सभी bonding character को जो molecule का feature है. This will be clear from the example of ozone. ये ozone का example के लिए अच्छा clear form है. ये अच्छा clear form है ozone से. ओजोन can represented by two canonical form shown earlier. तो ओजोन जो है दो कैनोनिकल फॉर्म दिखाता है. एक है 1, 2 और 3 जो रेजोनेंस हाइब्रिड है. एनर्जी 3 जो है वो काफ़ी कम रहता है एनर्जी 1 और 2 से.